Welcome back, guys, to my channel, The Voice Box, to the second episode of the chapter 1 of economics and economy. In the first part, we have discussed about the term economics and its types. Uh, those who haven't watched that video, you can find the link in the description box. Please go and watch it. Okay, now we are going to start with the second part of this chapter, named as economy. Economics is very clear to you. If you have any doubt, please ask me in the comment sections. Okay, economy. What is the meaning of economy? Let's look on to its definition. And economy refers to an economic order or an economic system spread over an area by which people of that area earn their living. Means it's very clearly mentioned. These are used very simple words so that you can easily memorize these words. Okay, so what is economy then? So at economy, it would be very clear to you. So what is an economy then? Economy refers to an economic order और an economic system. ठीक है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लोग या किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग अपनी जीवन यापन या अपनी लिविंग अर्न करते हैं। आइए हम थोड़ा सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में घुसते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में आपको यहाँ पे थोड़े कुछ छोटे छोटे लिखे हुए दिख रहे होंगे। तो ये वो क्या चीज़ है, ये बेसिस है कि जिस बेसिस में हमने एक एक पॉइंट को तोड़ा है। आइए सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में देखते हैं। तो पहला बेसिस है लेवल ऑफ इनकम। फर्स्टली वी हैव कंपेयर्ड द लेवल ऑफ इनकम इन बोथ द इकोनॉमीज। सो फर्स्टली इन द सिंपल इकोनॉमी the income level of people is low, and in complex economy the income level of people is high. ठीक है, then second is multiplicity of wants means चाहत, wants means चाहत. तो in simple economy wants are multiple but not so enormous, and similar to that in complex economy wants are multiple as well as enormous. The whole ppt you can use for your notes making purpose also. Okay, it can be very useful during your exam purpose, like you can use this for short notes. Okay, third point, extent of interdependent means mutual interdependence is limited, and in complex economy mutual interdependence is very high. Then similarly last point, degree of exchange. So degree of exchange is moderate in simple and it is very high in complex. So these are the 4 points on what we have discussed. ठीक है, तो कभी भी आपसे डिफरेंशिएशन बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी पूछे तो ये 2 कॉलम बना लीजिएगा और साथ साथ एक तीसरा कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में बनाइएगा। उसका हेडिंग डालिएगा बेसिस, मतलब किस बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई किए। तो पहला बेसिस देखिए, level of income. Income of level of people is low and income of level of people is high. Then multiplicity of wants. Wants are multiple but not so enormous. Wants are multiple as well as enormous. ठीक है, then interdependency, extent of interdependence. Mutual interdependence is limited and mutual interdependence is very high in complex economy. Then degree of exchange. Degree of exchange is moderate, and in complex the degree of exchange is very high. Okay, then come to the next topic, that is your types of economies. ठीक है, so उससे समझने के लिए पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, कि एक देश का जो भी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था है वो कौन संभालता है? मोस्टली द गवर्नमेंट। सब देश में वही होता है ना कि आप जाकर संभालते हैं। हाँ, आपके घर की इकोनॉमी भले आपके माताजी समझे, पिताजी समझे या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स समझे, कोई ना कोई तो समझता है, लेकिन एक पर्टिकुलर देश की इकोनॉमी कौन समझता है? उसका गवर्नमेंट। वही कह रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री बट द डिग्रीज वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। भले ही सारे कंट्री की इकोनॉमी उसकी सरकार संभालती हो ना क्यों, लेकिन हर देश की इकोनॉमी अलग अलग है। अब वो क्यों? क्योंकि
डिग्री ऑफ कंट्रोल के कारण। अब वो डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। आइए पहले इसके 3 टाइप्स को समझते हैं। व्हाट आर दिस 3 टाइप्स? फर्स्टली कंट्रोल इकोनॉमीज, सेकेंडली मार्केट इकोनॉमीज, इकोनॉमिक्स नहीं इकोनॉमीज, देन थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो पहला से प्रोसीड करते हैं। कंट्रोल इकोनॉमीज, इसमें देखिए डेफिनेशन, इन चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। क्या लग रहा है इन तीनों देशों के नाम को सुनकर? हाँ, देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। यही, इसको आप थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेट करिए तो देखिए कि चाइना में जो है वो 1 पार्टी सिस्टम है, रशिया में 1 लीडर सिस्टम है, और नॉर्थ कोरिया में तो कब से डिक्टेटरशिप है, नहीं मालूम कितना दिन तक चलेगा। खैर, तो इसमें क्या है कि इन चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, these are only the examples, there are few many countries, the degree of control is very high. Such economies where the degree of control is quite high is termed as control economies or centrally planned economies. यहाँ पे degree of control का मतलब देश में होने वाली प्रत्येक इकोनॉमिक डिसीजन कोई भी पर्टिकुलर बंदा नहीं ले सकता है, मतलब सारे के सारे डिसीजन गवर्नमेंट ही लेगी। तो वो क्या है? वो आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल है। मान लो कोई दुकान में कोई भी चीज़ बिक रही है तो वो दुकानदार अपने मर्जी से उसका रेट घटा बढ़ा नहीं सकता। आप अभी यदि शक्कर खरीदने जाओगे तो कोई दुकान में आपको 42 रुपये किलो देगा, कोई आपको 45 रुपये किलो देगा, ठीक है, वो दुकानदार अपने मर्जी से चला रहे हैं। लेकिन आप चाइना में जाओ, आप रशिया में जाओ, आप नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज़ में जाओ, यहाँ पे हर एक कैंडी जो बिकती है उसका प्राइस भी गवर्नमेंट फिक्स करके भेजती है। इसलिए बोला गया कि डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या है? हाई है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर मार्केट इकोनॉमीज़। मार्केट इकोनॉमीज़ में क्या कह रहा है कि दीज इकोनॉमीज़ वेयर द कंट्रोल विच कंट्रोल डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ नोशनल, वेरी लो, नेगेटिव, these are called free economies or market economies. Example USA, UK, you can include Dubai also examples, ठीक है। तो इन लोग को फ्री इकोनॉमीज क्यों कहा गया है? क्योंकि दुकानदार जो है वो अपने मर्जी से अपने प्रोडक्ट्स की दाम रखते हैं और उस दाम से गवर्नमेंट को वो टैक्स देते हैं। तो गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है क्या दुकानदार कितने रुपए में क्या बेच रहा है, गवर्नमेंट को सिर्फ अपने टैक्स से मतलब है, ठीक। तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल से आ गए? यूएसए और यूके। आइए मिक्स्ड इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमीज़ में क्या है? देयर इज़ एन इकोनॉमिक कंडीशन वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज मॉडरेट, मॉडरेट नाइदर टू हाई नॉर टू लो, दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जाम्पल ऑब्वियसली आवर इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग को मॉडरेट क्यों बोला गया है? हमारे देश में क्या होता है, कभी कभी दुकानदार अपने मर्जी से दाम तो लगा देता है लेकिन वो क्या होता है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय दी गवर्नमेंट, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमीज। ये किस तरह के डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? दे प्रेफर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर अपने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में पढ़ा, वेरी वेरी क्लियर थिंग, ठीक है। और सिमिलरली यदि आपको एग्जाम में एक कंपैरेटिव चार्ट पूछे कि प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन कंट्रोल इकोनॉमिक्स, मार्केट इकोनॉमीज एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज, सो आई थिंक बाय दिस डेफिनेशंस यू कैन फ्रेम मिनिमम 4 पॉइंट्स, 4 to 5 पॉइंट्स आप सिर्फ इस एक एक डेफिनेशन से फ्रेम कर सकते हैं। पहला डेफिनेशन आप कैसे फ्रेम कर सकते हैं? पहला डेफिनेशन आप 3 कॉलम बना लिए, चौथा कॉलम बनाए बेसिस का, क्या लिखे? नेचर। मार्केट इकोनॉमी की नेचर क्या है कि दीज आर इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट। मिक्स्ड इकोनॉमीज में क्या लिखेंगे? मिक्स्ड में लिखेंगे कंट्रोल्ड बाय मार्केट बट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, और कंट्रोल में लिखेंगे मार्केट, उसमें मार्केट का कोई रोल है ही नहीं, उसमें सारा का सारा सेंट्रल अथॉरिटी में है। फिर उसका मोटिव क्या है? सेंट्रल इकोनॉमीज का मोटिव है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ड्रिवन बाय दी सोशल वेलफेयर, खैर होता तो नहीं क्योंकि डिक्टेटरशिप है। और मार्केट में क्या है? सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर अलॉन्ग विद दी सेल्फ वेलफेयर ऑल्सो। और मिक्स्ड इकोनॉमीज में क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ बोथ। किस चीज़ की मैक्सिमाइजेशन? खुद की भी और सोशल वेलफेयर भी।
ठीक है। और प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो कंट्रोल इकोनॉमीज में तो भाई जो सेंट्रल अथॉरिटी प्राइस दे के भेजती है वही होती है। मार्केट इकोनॉमीज में मार्केट अपने अकॉर्डिंग बनाती है। और मिक्स्ड में बनाती मार्केट है लेकिन रेगुलेट कौन करती है? रेगुलेट उसको गवर्नमेंट करती है। चलिए, इसके बाद हम बहुत ही छोटे छोटे दो टॉपिक्स को लेके पढ़े हुए हैं। फर्स्ट इज स्कार्सिटी। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, स्कार्सिटी का मतलब नहीं जानते तो बहुत दुख की बात है। हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बना ही है स्कार्सिटी से। तो स्कार्सिटी मतलब अब तक आपको सब कोई जानते हैं, किसी चीज़ की कमी को हम लोग स्कार्सिटी कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स की भाषा के सिंपल टर्म्स में क्या कहेंगे? इन सिंपल टर्म्स स्कार्सिटी मीन्स द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव, द गुड्स रिक्वायर्ड सम सेक्रीफाइस। मान लो आप एग्ज़ाम लिखने गए हो, कोई भी एग्ज़ाम, आपको 2 पेन चाहिए, एक ब्लैक और एक ब्लू। आपके पास ब्लैक पेन अभी नहीं है, तो क्या है? आपको सिर्फ ब्लू पेन से ही एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। व्हाट इज़ दैट? यू आर सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, उसके साथ आपके पास एक स्कार्सिटी भी बन रही है कि किस चीज़ की स्कार्सिटी? वो ब्लैक पेन की स्कार्सिटी। ठीक है, तो स्कार्सिटी की मतलब किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ की अभाव। ठीक है, आइए फिर हम एक और छोटे से टॉपिक पे जाते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? जब भी किसी रिसोर्स की स्कार्सिटी होती है, ठीक है, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। मनुष्य की चाहत के अकॉर्डिंग रिसोर्सेस के कमी को ही हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। इसके बाद आपका एक बहुत छोटा सा टॉपिक रह जाता है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन छोटा है, दैट इज योर चॉइस एंड एमरजेंस ऑफ चॉइस। तो चॉइस किसे कहते हैं? चॉइस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। लिमिटेड अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स किस चीज़ के अल्टरनेटिव्स? मान लो आप को कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है और आपके टीचर ने आपको सजेस्ट किया कि भाई देखो, इसको यदि आपको मोर अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको मिनिमम 3 कलर्स ऑफ पेन्स यूज़ करने हैं। आपके पास ब्लैक, ब्लू है, अब रेड भी है और ग्रीन भी है। ये 4 कलर आपके पास है। अब आपने टीचर से पूछा कि मैम या सर, क्या हम रेड पेन यूज़ कर सकते हैं? बोले कैसे यूज़ करोगे यार, उसे तो हम चेक करेंगे। ठीक, तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है थर्ड कलर के लिए, या तो रेड या तो ग्रीन। तो आप क्या चूज़ करोगे? ग्रीन। इसलिए बोल रहा है सेलेक्शन फ्रॉम लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। आपके पास अल्टरनेटिव्स तो है लेकिन वो क्या है? वो भी लिमिटेड है। अब इसकी इमरजेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? फर्स्टली रिसोर्सेस आर स्कार्स, ऑब्वियसली रिसोर्सेस कम है। और दूसरा है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, कि जो रिसोर्स भी है उसके भी अलग अलग यूजेस हैं। तो हियर बाय वी एंड अप विद दिस चैप्टर। अगेन आई एम सेइंग टू यू, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगेन, stay fit, stay happy. Thanks for watching this video.